ایک ایسا مقام جہاں سمندر صرف پانی نہیں بلکہ طاقت، سیاست اور جنگ کا میدان بن چکا ہے۔ ایک ایسا راستہ جہاں سے دنیا کی معیشت سانس لیتی ہے، اور اگر یہ بند ہو جائے تو پوری دنیا اندھیرے میں ڈوب سکتی ہے۔ یہ ہے آبنائے ہرمز، ایک تنگ سا سمندری راستہ، مگر اس کی اہمیت اتنی بڑی ہے کہ اسے دنیا کی سب سے خطرناک گزرگاہ کہا جاتا ہے۔ خلیج فارس کو خلیج عمان سے ملانے والا یہ راستہ صرف چند کلومیٹر چوڑا ہے، لیکن یہاں سے روزانہ لاکھوں بیرل تیل گزرتا ہے جو امریکہ، یورپ، چین اور پوری دنیا کی صنعتوں کو زندہ رکھتا ہے۔ اگر ایک دن کے لیے بھی یہ راستہ بند ہو جائے تو تیل کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگے اور دنیا کی معیشت ہل کر رہ جائے۔ آبنائے ہرمز کے ایک طرف ایران ہے اور دوسری طرف عمان اور متحدہ عرب امارات۔ یہ جغرافیائی پوزیشن ہی اسے دنیا کا سب سے حساس مقام بناتی ہے، کیونکہ یہاں ہر وقت جنگ کے بادل منڈلاتے رہتے ہیں۔ ایران کئی بار یہ دھمکی دے چکا ہے کہ اگر اس پر دباؤ ڈالا گیا تو وہ اس راستے کو بند کر دے گا، اور یہ صرف ایک بیان نہیں بلکہ ایک ایسا خطرہ ہے جس سے پوری دنیا کانپ اٹھتی ہے۔ یہاں سے گزرنے والے بڑے بڑے آئل ٹینکر ایک لمبی قطار کی صورت میں آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں۔ ہر جہاز اپنے اندر کروڑوں ڈالر کا تیل لے کر چلتا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ جنگی جہاز بھی موجود ہوتے ہیں جو انہیں کسی بھی حملے سے بچانے کے لیے تیار رہتے ہیں، کیونکہ یہاں ایک چھوٹی سی چنگاری بھی ایک بڑی جنگ کو جنم دے سکتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ آبنائے ہرمز ہمیشہ سے طاقتور ممالک کی نظروں میں رہا ہے۔ برطانیہ نے بھی اس علاقے پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی، پھر امریکہ نے یہاں اپنی موجودگی مضبوط کی، اور آج بھی امریکی بحریہ یہاں مسلسل گشت کرتی رہتی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر یہ راستہ ان کے کنٹرول سے نکل گیا تو دنیا میں طاقت کا توازن بدل سکتا ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہاں سے اصل کھیل شروع ہوتا ہے۔ ایران نے اس علاقے میں اپنی فوجی طاقت کو اس قدر مضبوط کر لیا ہے کہ وہ کسی بھی وقت اس راستے کو بلاک کر سکتا ہے۔ اس کے پاس جدید میزائل، تیز رفتار کشتیوں کا بیڑا اور سمندر کے اندر بارودی سرنگیں بچھانے کی صلاحیت موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی ہمیشہ الرٹ رہتے ہیں۔ سن 1980 کی دہائی میں ایران اور عراق کی جنگ کے دوران یہ علاقہ ایک خطرناک جنگی میدان بن گیا تھا۔ آئل ٹینکرز پر حملے کیے گئے، میزائل داغے گئے اور کئی جہاز تباہ ہو گئے۔ اس وقت دنیا نے پہلی بار دیکھا کہ اگر آبنائے ہرمز میں جنگ چھڑ جائے تو اس کے اثرات پوری دنیا تک پہنچتے ہیں۔ تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں، معیشتیں متاثر ہوئیں اور عالمی سیاست میں ہلچل مچ گئی۔ آج بھی صورتحال کچھ مختلف نہیں بلکہ شاید پہلے سے زیادہ خطرناک ہو چکی ہے، کیونکہ اب اس میں صرف ایران اور امریکہ نہیں بلکہ اسرائیل، چین اور روس جیسے بڑے ممالک بھی شامل ہو چکے ہیں۔ ہر ملک اپنی طاقت دکھانا چاہتا ہے، ہر کوئی اس راستے پر نظر رکھے ہوئے ہے، کیونکہ جو آبنائے ہرمز کو کنٹرول کرے گا وہ دنیا کی معیشت کو کنٹرول کرے گا، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں ہر وقت جنگ کا خطرہ موجود رہتا ہے۔ ایک چھوٹی سی غلطی، ایک غلط فیصلہ یا ایک حادثہ پوری دنیا کو جنگ میں دھکیل سکتا ہے۔ تصور کریں اگر ایک میزائل غلطی سے کسی آئل ٹینکر کو لگ جائے یا کسی جنگی جہاز پر حملہ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ صرف چند گھنٹوں میں دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں آمنے سامنے ہوں گی اور ایک عالمی جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے۔ یہ صرف ایک سمندری راستہ نہیں بلکہ ایک ٹائم بم ہے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔ اور اب سوال یہ ہے، کیا واقعی ایران اس راستے کو بند کر سکتا ہے؟ اگر ہاں تو دنیا اس کا مقابلہ کیسے کرے گی؟ اور اگر یہ راستہ بند ہو گیا تو پاکستان سمیت پوری دنیا پر اس کے کیا اثرات پڑیں گے؟ کہانی یہاں سے مزید خطرناک رخ اختیار کرتی ہے،
क्योंकि अब सवाल सिर्फ ये नहीं रहा कि अबनाए हुर्मस कितनी अहम है, बल्कि असल सवाल ये है कि अगर ईरान वाकई उसे बंद करने का फैसला कर ले तो दुनिया क्या करेगी और क्या वाकई कोई मुल्क उसे रोक सकता है। ईरान ने बरसों में इस इलाके को एक मजबूत दिफाई किले में तब्दील कर दिया है। उसके पास सिर्फ रिवायती जंगी जहाज़ ही नहीं बल्कि छोटी तेज़ रफ्तार कश्तियों का एक ऐसा बेड़ा मौजूद है जो चंद मिनटों में किसी भी बड़े ऑयल टैंकर को घेर सकता है। ये कश्तियों पर नस्ब मिसाइल लम्हों में तबाही फैला सकते हैं। इसके अलावा ईरान के पास ऐसे बारूदी सुरंगें भी मौजूद हैं जो समंदर के अंदर छुपकर किसी भी गुजरते हुए जहाज़ को निशाना बना सकती हैं। और यही वो हथियार है जिससे सबसे ज़्यादा खौफ पैदा होता है। अगर ईरान सिर्फ चंद दर्जन बारूदी सुरंगें भी उस रास्ते में बिछा दे तो पूरा समुद्री रास्ता बंद हो सकता है, क्योंकि कोई भी मुल्क अपनी कीमती जहाज़ों को इस कदर ख़तरे में नहीं डालेगा। और यही वो लम्हा होगा जब दुनिया की मईशत हिल कर रह जाएगी। अमेरिका इस ख़तरे से अच्छी तरह वाकिफ़ है, इसलिए उसके बहरिया मुसलसल इस इलाके में मौजूद रहती है। जदीद तरीन जंगी जहाज़, आबदोज़ें और तैयारा बरदार बहरी जहाज़ हर वक्त अलर्ट रहते हैं। उनका मिशन सिर्फ एक है, अबनाए हुर्मस को हर सूरत खुला रखना, क्योंकि अगर ये रास्ता बंद हो गया तो सबसे ज़्यादा नुकसान खुद अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को होगा। लेकिन सवाल ये है, क्या अमेरिका वाकई ईरान को रोक सकता है? हकीकत ये है कि जंग की सूरत में ये कोई आसान काम नहीं होगा, क्योंकि ईरान अपनी ज़मीन के करीब लड़ेगा और उसे जोग्राफियाई बरतरी हासिल होगी। उसके मिसाइल साहिल से सीधा समंदर में मौजूद जहाज़ों को निशाना बना सकते हैं और ये जंग सिर्फ चंद घंटों या दिनों की नहीं बल्कि एक तवील और तबाहकुन जंग में बदल सकती है। अब ज़रा तसव्वुर करें वो दिन जब अचानक खबरें आती हैं कि अबनाए हुर्मस बंद हो चुकी है, तेल की सप्लाई रुक गई है, दुनिया भर में पेट्रोल पंप खाली होने लगते हैं, कीमतें आसमान को छूने लगती हैं, फैक्ट्रियां बंद होना शुरू हो जाती हैं और मईशत एक ऐसे बहरान में दाखिल हो जाती है जिसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान भी इस तूफान से महफूज नहीं रहेगा, क्योंकि हमारी मईशत भी बड़ी हद तक दरामदी तेल पर मुनहसर है। जैसे ही तेल महंगा होगा हर चीज़ महंगी हो जाएगी, बिजली, ट्रांसपोर्ट, खुराक, सब कुछ। आम आदमी की ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल हो जाएगी और मुल्क के अंदर एक नया माशी बहरान जन्म ले सकता है। लेकिन कहानी का सबसे ख़तरनाक पहलू अभी बाकी है, क्योंकि इस जंग में सिर्फ ईरान और अमेरिका ही शामिल नहीं होंगे बल्कि इसराइल भी इसमें कूद सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ये एक इलाकाई जंग नहीं रहेगी बल्कि एक आलमी जंग का आगाज़ हो सकता है। चीन और रूस भी इस सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं और वो अपने मफादात के लिए किसी भी वक्त मैदान में आ सकते हैं। यानी एक छोटा सा समुद्री रास्ता पूरी दुनिया को जंग के दहाने पर ला खड़ा कर सकता है। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि ये रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हुआ हो, और अगर नहीं तो क्यों? इसका जवाब तारीख़ में छुपा हुआ है, जहां हमें ऐसे वाक़यात मिलते हैं जब हालात इस नहज तक पहुंच गए थे कि जंग तकरीबन शुरू हो चुकी थी, लेकिन आखिरी लम्हे में दुनिया ने ख़ुद को तबाही से बचा लिया। तारीख़ के औराक जब पलटे जाते हैं तो अबनाए हुर्मस सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि बारूद की एक ऐसी लकीर दिखाई देती है जिस पर दुनिया कई बार चल चुकी है, मगर हर बार किसी न किसी तरह तबाही के किनारे से वापस लौट आई है। सवाल ये है कि आखिर क्यों आज तक ये रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हो सका? इसका जवाब हमें सन 1980 की दहाई में मिलता है, जब ईरान और इराक के दरमियान एक खौफनाक जंग जारी थी। और यही वो वक्त था जब अबनाए हुर्मस दुनिया के लिए सबसे बड़ा ख़तरा बन गई थी। इस जंग को टैंकर वार कहा जाता है, क्योंकि दोनों ममालिक ने एक दूसरे के ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। खलीज फारिस का पानी आग और धुएं से भर गया था, हर तरफ तबाही के मनाजिर थे।
बड़े बड़े जहाज़ जल रहे थे और दुनिया खौफ में मुब्तला थी कि कहीं ये रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद ना हो जाए। ईरान ने बारूदी सुरंगें बिछाईं, जबकि इराक ने मिसाइलों से हमले किए। दर्जनों ऑयल टैंकर्स तबाह हुए। कई ममालिक के जहाज़ इस जंग की लपेट में आ गए और फिर वो लम्हा आया जब अमेरिका ने बराह रास्त मुदाखलत का फ़ैसला किया। उसने अपनी जंगी जहाज़ खलीज में भेज दिए ताकि अपने इत्तेहादियों के जहाज़ को महफूज रखा जा सके। ये सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक हो चुकी थी। एक मामूली सी गलती, एक छोटा सा हमला पूरी दुनिया को एक बड़ी जंग में धकेल सकता था। लेकिन इस सब के बावजूद आबनाए हुर्मज़ मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुई। क्यों? क्योंकि दुनिया की बड़ी ताकतें जानती थीं कि अगर ये रास्ता बंद हो गया तो नुकसान सिर्फ एक मुल्क का नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया उसकी कीमत चुकाएगी। यही वजह है कि हर बार जब हालात ख़राब होते हैं तो पसपर्दा मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं, दबाव डाला जाता है और किसी न किसी तरह इस रास्ते को खुला रखा जाता है। लेकिन क्या ये हमेशा ऐसा ही रहेगा? आज की दुनिया पहले से कहीं ज़्यादा पेचीदा हो चुकी है। ताकत का तवाज़ुन बदल रहा है। ईरान पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुका है। उसके पास ऐसे जदीद मिसाइल मौजूद हैं जो सैकड़ों किलोमीटर दूर तक अपने हदफ को निशाना बना सकते हैं। उसकी नेवी पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है और उसके पास अब वो तजुर्बा भी है जो उसे एक बड़ी जंग लड़ने के काबिल बनाता है। दूसरी तरफ अमेरिका भी पीछे नहीं। उसकी बहरी ताकत दुनिया में सबसे बड़ी है। उसके पास जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, सेटेलाइट सिस्टम्स और ऐसे हथियार हैं जो चंद लम्हों में पूरे इलाके को तबाह कर सकते हैं। और यही वो ख़तरनाक तवाज़ुन है जो दुनिया को एक नाजुक मकाम पर ले आया है। आप ज़रा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि अगर आज के दौर में किसी गलती की वजह से जंग शुरू हो जाए, अगर एक मिसाइल गलत हदफ पर जा लगे या किसी जंगी जहाज़ पर हमला हो जाए तो क्या होगा? ये जंग सिर्फ खलीज तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि इसके असरात पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। तेल की सप्लाई रुक जाएगी, आलमी तिजारत मुतासिर होगी और दुनिया एक ऐसे माशी बहरान में दाखिल हो जाएगी जिसकी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है, क्या मुस्तकबिल में आबनाए हुर्मत वाकई बंद हो सकती है या ये सिर्फ एक खौफ है जो कभी हकीकत नहीं बनेगा? माहिरीन के मुताबिक मुकम्मल तौर पर बंद करना शायद मुमकिन ना हो, क्योंकि दुनिया की ताकतें किसी भी कीमत पर उसे खुला रखने की कोशिश करेंगी। लेकिन जुज़वी तौर पर बंद होना या वक्ती रुकावट आना एक ऐसा ख़तरा है जो किसी भी वक्त हकीकत बन सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो उसके असरात शायद पहले से कहीं ज़्यादा तबाहकुन होंगे।